Hello, students. Let's start with the third chapter of political science, that is political parties. So, in this chapter, we will study what are the different political parties present in India and what are the characteristics of political parties. What are the functions of political parties? How are the party system changing in India? And we will see what are the national political party, what are the state political parties. Then we will see what is the criteria to defining state political party and the national political party. In the second part we have studied about electoral process. So in that part also we have studied that there are representatives that are ruling in our country. So our representatives rule behalf of us, and from where the representative come from? These representative come from political party, right? So political party is very important in the democracy. So we will study what is the political parties and what are the different characteristics of political parties. So let us begin with the chapter. In the last chapter we studied the working of the constitution and the election procedure, right? Political parties are link that connects common people, democracy, representation and elections. ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो लिंक करती है एक दूसरे के साथ में, कॉमन पीपल के साथ में. कॉमन पीपल से ही लोग खड़े होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में जाते हैं, एंड दे आर गो in the houses, lower house and upper house, as our representative, right? So common people, democracy and election, ये जो सब कुछ है, ये जो तीनों चीज़ें हैं, इनको लिंक करने वाले कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज है. वॉट एवर वी रीड और हियर अबाउट द पॉलिटिक्स is related to political parties. Political parties exist in the democratic systems. In fact, political parties compete with each other only in the democracy. पॉलिटिकल पार्टीज़ कहाँ पाई जाती है? जहाँ मोनार्ची है वहाँ पाई जाती है, जहाँ राजेशाही है वहाँ पाई जाती है? नहीं. ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज़ कहाँ होगी? डेमोक्रेसी में होगी. और डेमोक्रेसी उसे ही कहा जाता है जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को कॉम्पीट करना है. हर एक जगह पर कंपटीशन है, एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर कंपटीशन करती हैं तो वही डेमोक्रेसी है, बिकॉज एवरीवन हैविंग राइट टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री और रिप्रेजेंट देयर स्टेट. In this chapter we will study the political party system in India. So political parties dated as a link. political party के followers होते हैं, political party members और leaders जो कि elections में part लेते हैं, and they forming democratic government, right? And they representing people in the lower house and upper house. लोकसभा, राज्यसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट का जो भी लोअर हाउस अपर हाउस होता है, विधानसभा, विधान परिषद, राइट? पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्पीट विद ईच अदर, एंड पॉलिटिकल पार्टीज आर द बेस ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम. जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होगा उस कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज होती है, एंड विच कंट्री हैविंग द कॉम्पिटिशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, राइट? For settle government or come in the rule, that country is called a democratic country. जिस कंट्री में ये कंपटीशन नहीं होता है, जैसे अगर चाइना का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चाइना, इन चाइना देयर इज़ ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी. उनसे कंपटीशन करने वाला कोई नहीं है, तो हम लोग उसे डेमोक्रेसी कहेंगे? ऑब्वियसली नॉट. सो देयर इज़ नो कंपटीशन, देयर इज़ नो चॉइस टू द पीपल. सो चाइना कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री. Okay, come to the next point, next para. In our school and the surroundings you must have seen some groups, institution, organizations working to achieve some objectives. बहुत से हमने ग्रुप्स देखे हैं, एनजीओज देखे हैं जो कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स के लिए, जैसे पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करने के लिए कुछ करते हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाते हैं, अवेयरनेस लाते हैं सोसाइटी में. सम ऑर्गेनाइजेशन टेक इनिशिएटिव रिसॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दे आर ओनली सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम्स. दे डिडंट वांट टू कम इन अ रूल और टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, राइट? दैट इज़ एनजीओज वगैरह जो होते हैं, उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है. You may have read about the various movements, their works.
just as there are active groups, institution and movements, similarly there are political parties who contest elections. Political parties are also a kind of social organization, right? So like political parties क्या करते हैं, they are try to solve the politic and social problem, political problem and social problem, and how the work they work or they solve और कोई भी वर्क है, कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई इशू है, टू कम इन अ रूल, वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं, दे वेट एंड जब वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तब वो कुछ रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं और जो भी प्रॉब्लम सोसाइटी ने फेस किया है उसको दूर करते हैं, लॉज बनाते हैं, है ना. बट इफ एनी पार्टीज वांटेड टू सॉल्व द सोशल इशू दे मस्ट कम इन अ पावर. डिसीजन लेने का पावर तो होना चाहिए ना, तभी तो डिसीजन ले सकते हैं. और ये कब मिलेगा, इफ़ दे कम इन अ पावर. जैसे बहुत से पॉलिटिकल ग्रुप्स, एक्टिव ग्रुप्स, जो एनजीओज या जो भी मूवमेंट्स होते हैं, दे आर फाइटिंग वेलफेयर ऑफ द पीपल. Along with them, political parties are also fighting for the people. You just see in the अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपने अभी देखा होगा जो करंट है, हाथरस का जो भी प्रॉब्लम शुरू है, कई सारे लोग वहाँ पर गए हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज भी गई है, कई एनजीओज भी गए हैं, राइट. तो पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से गई है, अपने स्वाद के लिए गई है, एनजीओज गए हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, राइट. सो ये अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं, ये अलग अलग वर्क होते हैं, वर्किंग स्टाइल होती है. दे आर कंटेस्टिंग इलेक्शंस. Political parties also kind of a social organization, but there is a difference between political parties and the other institution. पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बहुत बार अच्छे काम करते हैं, एक सोशल इंस्टीट्यूशन का काम करती है, लेकिन सोशल इंस्टीट्यूशन में या फिर अदर इंस्टीट्यूशन में एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. एनजीओज पावर में नहीं आते हैं, political parties come in power and they are achieving that power, and because of that power they are trying to do good things to the people, right. Then the next is, following are the some important characteristics of the political parties to be in power. Achieving power सबसे पहला जो point है, अगर हम लोग देखेंगे, है to be in power. टू बी इन पावर में क्या दिया है, अचीविंग पावर थ्रू इलेक्शंस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. दस डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्पीट विद ईच अदर टू गेट पावर. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस कॉम्पिटिशन, बट द कॉम्पिटिशन शुड बी फेयर. कैसी होनी चाहिए कॉम्पिटिशन, फेयर होनी चाहिए. सो पावर अचीविंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, राइट. Without power they can't do anything. Like in the second chapter we have seen free and fair election होना चाहिए, right. If there is a competition is good, but the competition should be fair and fine. Okay. Then second is to pursue an ideology. Every political party has some politics and world views. Parties have a particular stand about social issues. These together make a party ideology. Ideology is a type, विचारधारा जो होती है, एक पार्टी आइडियोलॉजी. एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ सम पॉलिटिक्स तो होते ही है, एंड अ वर्ल्ड व्यूज़, कि वो किस तरह से देखती है. सिर्फ पावर अचीविंग दे सकती है, या फिर अगर हम बीजेपी का देखते हैं, राइट, तो पावर अचीविंग तो उन्होंने बहुत पावर अचीव किया है, या फिर वो पावर में तो है ही, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सा वर्क किया है आउट ऑफ द कंट्री, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर. जैसे कि नोटबंदी है, एंड जो कश्मीर का जो डिफरेंट हमारा वर्किंग था कश्मीर का एंड इंडिया का, तो वो 360 जो है वो बंद कर दिया उन्होंने. तो ये अलग अलग, तो वो हर एक पार्टी का आइडियोलॉजी होता है, विचारधारा होती है, हैविंग डिफरेंट आइडियोलॉजी. कांग्रेस हैविंग डिफरेंट आइडियोलॉजी, बीजेपी हैविंग डिफरेंट आइडियोलॉजी, राइट. जो लोग पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं वो लोग उस आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, इसीलिए वो पॉलिटिकल पार्टीज को उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं,
क्यों? क्योंकि उनकी विचारधारा और पार्टी की विचारधारा नियर अबाउट सेम होती है, एंड दैट्स व्हाई these together make a party ideology, and the people who consider any specific party ideology as a acceptable support that political party social support received by political party is called the mass base of political party. In modern days, ideologies of all political parties appear to be similar. Hence, it has become difficult to differentiate between the parties on the basis of ideologies. सो मास बेस मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी के कितने सपोर्टर है, जो भी वोट मिलते हैं, दैट इज मास बेस. लोगों का सपोर्ट, सोसाइटी का सपोर्ट कितना मिलता है, दैट इज मास बेस. एंड इफ यू अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, इफ यू हैव यू नो द शिवसेना, है ना, बहुत सारी पावरफुल पार्टीज है, एंड लेकिन ज़्यादा पावर मिलने की वजह से शिवसेना रूल पर आ गई, या फिर बाकी जो कम जो भी इनका उनका उन्हें पार्टीज़ को वोटिंग था, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने अपने वोट्स शिवसेना को दिए, एंड दैट्स वाई शिवसेना इज रूलिंग नाउ इन महाराष्ट्र. राइट? तो इट इज़ इन अ मास बेस की सोसाइटी को क्या, सोशल जो भी लोग हैं, पीपल है, उन्हें क्या पसंद है. ओके, बीजेपी का भी एक आइडियोलॉजी है, जैसे इंडिया से गरीबी को हटाना है एंड बेरोज़गारी जो भी यंग प्रॉब्लम है वो ही कम करना है. सो कांग्रेस का भी एक आइडियोलॉजी, अलग अलग आइडियोलॉजी होते हैं, अलग अलग. तो ये जो पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टीज अपीयर द सिमिलर, हेंस इट हैज़ बिकम डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी. लेकिन आइडियोलॉजी बेसिस पर पार्टीज को डिफ्रेंशिएट करना ये थोड़ा हार्ड हो सकता है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज टू हैव अ पार्टी एजेंडा. पार्टी एजेंडा, ये एजेंडा क्या है कि आपने सुना होगा कि जब इलेक्शंस आते हैं तो अलग अलग पार्टीज़ के लोग आते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रचार के लिए, या फिर सोशल मीडिया से भी बहुत सारा प्रचार शुरू होता है कि हम लोग ये करेंगे, फार्मर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वुमेंस के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बेरोज़गारी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, सम एंड ऑल. राइट? सो ये जो एजेंडा है, पॉलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर देयर पार्टीज एजेंडा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी आइडियोलॉजी. ठीक है, दे इम्प्लीमेंट द एजेंडा आफ्टर दे गेट द पॉलिटिकल पावर. जब वो पॉलिटिकल पावर में आ जाते हैं इलेक्शंस के बाद में, फिर उन्हें क्या होता है कि इस एजेंडा को फॉलो करना पड़ता है, कि उन्होंने जो वादे किए हैं, उन्होंने जो प्रोमिसेस किए हैं सोसाइटी को, पीपल को, उनको वो पूरे करने हैं. राइट? इवन इफ दे डू नॉट गेट पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू गेट सपोर्ट ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ दिस एजेंडा. अगर पावर में नहीं भी आते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनके बेसिस पर, मतलब अगर मेरा प्रॉब्लम कोई एक पार्टी सॉल्व करना चाहती है या फिर उनके एजेंडा में है, तो मैं उस पार्टी को, पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करूँगी. राइट? जैसे अगर फार्मर्स का प्रॉब्लम है, कोई एक एग्जांपल लेते हैं कि अभी कांग्रेस फार्मर्स के प्रॉब्लम को सपोर्ट कर रही है. राइट? बीजेपी भी कर रही है, वो अलग आइडियोलॉजी से कर रही है, कांग्रेस अलग आइडियोलॉजी से कर रही है. सो अगर कांग्रेस पार्टी अगर रूल में नहीं भी है, फिर भी उन्हें सपोर्ट तो मिल रहा है, उनका मास बेस तो बढ़ रहा है. राइट? सो पार्टी एजेंडा का ये भी एक इम्पोर्टेंस होता है. नेक्स्ट वन इज टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट. Obviously, political parties establish the government, govern the nation. Political party which gets majority in elections form the government. इलेक्शन में जिसे मेजोरिटी मिलती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है. एंड द पार्टीज विच डू नॉट गेट मेजोरिटी एक्ट एज अ अपोजिशन पार्टी. जैसे अगर इंडिया का पॉलिटिक्स अगर देखोगे तो अभी रूल में कौन सी पार्टी है? बीजेपी है. राइट? एंड अपोजिशन पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिन्हें बीजेपी से थोड़े कम वोट मिले हैं, वो कौन सी पार्टी है? कांग्रेस पार्टी. तो अपोजिशन में कौन सी पार्टी बैठी है? पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी बैठी है. ठीक है. The next is to act as a link between the government and the people. Obviously, political parties work as a link between the government and the people. Political parties communicate the demands and the complaints of the people
to the government, and the government tries to get support of the people for its policies and programs through the political parties. पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू जो भी लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सॉल्व करने की कोशिश कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ की करता है. अगर करंट एग्जांपल अगर लेते हैं तो कोरोना के बारे में ये कोई भी नहीं जानता था कि ये ऐसा कुछ होगा, लेकिन सोसाइटी अगर प्रॉब्लम में है, लोग प्रॉब्लम में है, कंट्री का प्रॉब्लम में है, तो ऑन टाइम जो भी डिसीजन ले सकते हैं वो किसने लिए हैं? जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने लिए हैं. और ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम द सोसाइटी फ्रॉम दैट पेंडेमिक कंडीशन, राइट. उन्होंने कई सारे मेडिकल जो भी फैसिलिटीज़ देना चाहे, फैसिलिटीज़ बढ़ाना है, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं. देन द नेक्स्ट इज चेंजिंग द नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज सिस्टम इन इंडिया. सो ये जो बॉक्सेस है ये हम देख रहे हैं येलो रेड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर्स. ये जो है ये हम लोग पहले पढ़ते थे, लेकिन जब जैसे 25% रिड्यूस हुआ है तो ये जो चीज़ें हैं ये कम हो गई है. एक दो लेसन भी कम हो गए, एंड दीज थिंग्स जो एक्स्ट्रा दी गई है थी वो भी कम हो चुकी है. ठीक है. देन directly come to the next point, changing the nature of the political party system in India. The first one, the Congress was a strong political party in the post independence period. पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में उस वक्त सिर्फ एक ही पार्टी थी, एक बाकी बहुत बड़ी कांग्रेस ही पार्टी थी, बाकी तो छोटे छोटे पार्टीज थे. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस तक के इन इंडिया कांग्रेस पार्टी वॉज द स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी. कांग्रेस हैड अ मेजोरिटी एट द सेंटर मीन्स नेशनल लेवल पर. इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स सेंटर पर उनकी मेजोरिटी थी ही. बहुत सारे स्टेट्स में भी कई सारे जो भी फॉलोअर्स थे उनके कांग्रेस के बहुत ज़्यादा थे. इंडियन पॉलिटिक्स was controlled by the Congress party. This era was described as a era of a single dominant party system. अब ये कौन सा एरा था? सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक ही स्ट्रांग पार्टी थी जिन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड और उसके बाद वाला जो भी पीरियड है सिर्फ और सिर्फ इसी पार्टी ने संभाला था. पॉलिटिक्स इंडिया का जो है वो इसी पार्टी ने संभाला था, इसीलिए इस एरा को क्या नाम दिया है? सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम. अब नेक्स्ट जो धीरे धीरे देखो पार्टी सिस्टम किस तरह से चेंज होने वाला है. द सेकेंड वन इज द नॉन कांग्रेस पार्टीज कम टुगेदर एंड चैलेंज अ सिंगल डोमिनेंट पार्टी. इस पार्टी से सिंगल डोमिनेंट सिर्फ एक ही, जैसे मैंने चाइना का एग्जांपल दिया कि वहाँ पर कंपटीशन ही नहीं है कोई भी, राइट. तो उसे डेमोक्रेसी नहीं कहा जाएगा. वही जो पहले बताया कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में जो आइडियोलॉजी थी पार्टीज़ की वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा था? कांग्रेस ही थी. लेकिन कुछ लोगों को ये आइडियोलॉजी पसंद नहीं आई, एंड दैट्स वाई दे फॉर्म द डिफरेंट पार्टी, राइट. तो ये जो डिफरेंट पार्टीज़ है, छोटे पार्टीज़ थे, और ये छोटी पार्टीज़ ने दोनों कई सारे पार्टीज़ मिलकर एक अलग अपोजिशन खड़ा कर दिया 1977 में. और ये उन्होंने चैलेंज कर दिया, उन्होंने कॉम्पीट करना चाहा किसके साथ में? कांग्रेस के साथ में. देन द थर्ड वन इज आफ्टर द 1989 लोकसभा इलेक्शंस द सिस्टम ऑफ पार्टी इमर्जिंग एज अ डोमिनेंट पार्टी कम टू एन एंड. अब ये जो सिंगल डोमिनेंट पार्टी था, मतलब एक ही पार्टी थी पॉलिटिकल पार्टी, ये यहाँ पर 1989 में ख़त्म हो गई, क्योंकि 1977 में उसे चैलेंज कर दिया था बाकी सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने. ओके. एज अ डोमिनेंट पार्टी कम टू एन एंड, सिंस देन डिफरेंट पार्टीज बिगेन टू कम टुगेदर फ्रॉम द कोलिशन गवर्नमेंट्स. Both the Bharatiya Janata Party, that is BJP, and the Congress Party made an experiment of establishing coalition governments. The belief that coalition government brings instability was proved wrong by the political party system in our country. In fact, the coalition government system as a
स्टेबलाइज्ड इन इंडिया। और धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि कुछ सीट्स कांग्रेस की आती थी, कुछ सीट बीजेपी, और दोनों मिलकर जो भी पॉसिबल, ऐसे नहीं लगता था कि ये पॉसिबल होगा गवर्नमेंट फॉर्म करना। ऐसे कुछ लोग अलग पार्टी के हैं, सम पीपल्स आर फ्रॉम बीजेपी, सम पीपल्स आर फ्रॉम कांग्रेस। इट इज़ नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम कि हाउ वी फॉर्म अ गवर्नमेंट, हाउ वी रूल। बट वहाँ से 1989 से ये स्टार्ट हो गया एंड द कोलिशन गवर्नमेंट इट फॉर्म्स एंड स्टेबल इन इंडिया। हियर वी स्टॉप टुडे, वी continue our lesson in a next lecture. Thank you.